जानकारी के लिए यह इस समय बाहर का तापमान 25 अंक सेल्सियस है और हमें आपको यह बता चुका है खुशी है कि आज हमारे निर्धारित समय से 35 मिनट पहले उदय पहुंच गए हैं। गुड मॉर्निंग पीपल ऑफ द इंटरनेट, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है राघव मेहता एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल गो डाउन हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। सो जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आई एम लीविंग माय होम टाउन ड्यू टू वर्क रियली सून। आई लेफ्ट माय होम टाउन एंड आई एम नॉट इन द सेम प्लेस वेयर आई वाज 3 to 4 days back. I am in a different city and a different state altogether. I just wanted to give you guys an update कि where am I and what am I doing. Also I'm going to talk about the flying guidelines that have been changed during the COVID-19 and you guys have to follow whenever you book your tickets and whenever you fly to a different state or different city in India. So as soon as I decided to travel, the first thing that I had to do, like everybody has to do, is book tickets. I booked my tickets normally, कोई ज़्यादा कुछ procedure में change नहीं. I went on make my trip, I booked my tickets and after booking the tickets, remember you have to fill one health declaration form जो आपको आपके email पे आ जाएगा. अगर आपने online नहीं भरा होगा आपको वो सेम चीज़ एयरपोर्ट पे जाके उनको रिटर्न में देनी पड़ेगी. आई लेफ्ट फॉर दिल्ली एज आई लिव इन करनाल, तो मेरे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. मैं टर्मिनल 3 पहुंचा, तो पहुंचते ही मैंने जो फर्स्ट चीज़ वहाँ पे देखी कि जो आपका हैंड लगेज है उसके लिए बाहर ही एयरपोर्ट पे एक मशीन थी जिसमें आपको अपना हैंड लगेज डालना था एंड दैट मशीन सैनिटाइजेज योर हैंड लगेज. आफ्टर यू आर डन सैनिटाइजिंग योर हैंड लगेज, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि you have to enter the airport, जो the main gate of the airport. They did not take my ticket from my hand or they did not take the boarding pass in their hand. एक सिक्योरिटी पर्सनल और मेरे बीच में एक मतलब लाइक ग्लास था. So he was standing on the other side of the glass and I was standing on the other side of the glass. So after the temperature checkup, when they took my temperature for the first time at the airport, I went to the check-in counter. I gave my luggage. That person took my luggage. मेरा luggage चला गया and उसके बाद मेरा security check वगैरह हुआ. So when I was done with the check-in and all, and then जब मैंने सब कुछ अंदर जाके माहौल वगैरह देख लिया, चिल कर लिया, शॉट्स वगैरह ले लिए, I got a call from my airlines कि मेरा बैग level 4 security check में फंस गया. जो मेरा check-in luggage था that got stuck. So this happened there. So I was done with my like security check and everything. I did the check-in also, but I got a call that my bag is stuck in level 4. I don't know, like I hope there's nothing wrong with my bag. Ma'am, are you Seema Gandhi? You called me? My Raghav, yes. Is there something wrong with the bag? Probably that my trimmer. Okay, ठीक है. I really need it. I can't survive without my trimmer. So yeah, let's see क्या होता है, देखते हैं. It was not my trimmer, it was my Zippo lighter. So I don't know why they were not allowing my lighter to be in my check-in luggage, but I was not ready to give up my lighter. So what I did, I dismantled it. I took out all the cotton and the flame from it. They wanted me to throw the lighter. So I was like, I am not agreeing to throw the lighter. And probably I won. I'm still at that area. They have asked me to wait. I'm waiting. I got my boarding pass back. So तो जैसे ही मेरा चेक इन लगेज क्लियर हुआ, मेरा बोर्डिंग टाइम हो गया था, जल्दी से भाग के आई वेंट टू माय गेट. वहाँ पे जैसी बोर्डिंग शुरू हुई, सो आई वेंट टू द काउंटर. आई शोड माय बोर्डिंग पास. जैसे पहले क्या होता था, बोर्डिंग पास देके आपको दे यूज्ड टू से कि आप अंदर चले जाओ, बट नहीं, वहाँ उन्होंने पूछा कि मैंने अपना हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है या नहीं भरा है. आई डिड दैट. आई वाज लाइक यस, मैंने भर दिया है. तो उसके बाद उन्होंने मेरे को 3 चीज़ें दी, फेस शील्ड दी, मास्क दी और लाइक 5 हैंड सैनिटाइजर दिए. थोड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा, बट मेरे को ये लग रहा है कि यार कोविड-19 की वजह से जो यूज़ ऑफ प्लास्टिक है वो भी मैंने रियलाइज़ करा है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया. ये चीज़ मेरे को मतलब आसपास अपने देख के इतने सारे मास्क गिरे हुए हैं, प्लास्टिक के बने हैं, फिर उनका जिस पैकिंग में वो आते हैं वो भी प्लास्टिक. एवरीथिंग
इज प्लास्टिक, सो दैट रियली सैडन्स मी। इससे हमारा जो प्लास्टिक फुटप्रिंट है अकॉर्डिंग टू मी बढ़ ही रहा है। तो जैसे ही मेरे को मेरा मास्क वगैरह मिल गया, मैंने सब कुछ डाल लिया। इट वाज थोड़ा सा सफोकेटिंग बिकॉज यू आर वेयरिंग अ मास्क, यू आर वेयरिंग अ शील्ड एंड देन shield gets too foggy because you're breathing and all. And also don't sit in the middle, because if you're gonna sit in the middle, the airlines is gonna give you a PPE kit and that will make your flight like a living hell. Remember, don't sit in the middle. So then my boarding started. जैसे ही मेरा boarding start हुआ, I got up from my seat, I showed my boarding pass, and while I was entering the airport, they checked my temperature for the second time now. As soon as you are gonna enter the flight, आप अपना boarding pass दिखाओगे, bridge that connects the airport to the airplane, उससे पहले भी आपका एक बार और टेम्परेचर चेक होगा। मैंने इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट बुक करी थी, दैट टू विंडो साइड। तो इसका बेस्ट पार्ट क्या हुआ कि देयर वाज नो वन सिटिंग ऑन द राइट टू सीट्स ऑफ मी। सो जब मैं अपनी फ्लाइट में आया हूँ, मैं आराम से प्रॉपरली लाइक आई वाज लाइंग डाउन। और मेरा इमरजेंसी एग्जिट चूज़ करने का मेन पर्पस ये रहता है कि मेरे को ज़्यादा अपनी सीट को रिक्लाइन नहीं करना है, मेरे को लेग स्पेस से मतलब होता है। बिकॉज जितना ज़्यादा लेग स्पेस होगा उतना ज़्यादा मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जो आगे वाला बंदा है उससे भी थोड़ा डिस्टेंस बना रहेगा। बट वैसे अगर अब इस बार देखा जाए तो मेरे जैसे राइट हैंड साइड पे भी कोई नहीं था, सो एवरीबडी वाज लाइक 3 to 4 feet away from me in the plane. So that was the best part about the flying experience this time. So my flight was for 4 hours. It flew from Delhi. It landed in Goa. There was a 45 minute layover in Goa. तो मतलब मैं पूरा रास्ता ऑलमोस्ट सो ही रहा था। एंड मेरे को यार एयर इंडिया की एक बात अच्छी लगी कि मेरे को लगा था कि ऑन बोर्डिंग फूड दे आर नॉट मतलब गिविंग टू दी फ्लायर्स की ऑन बोर्ड रिफ्रेशमेंट्स वगैरह कुछ नहीं होंगी। बट व्हेन इट कम्स टू एयर इंडिया गेव अस रिफ्रेशमेंट्स 2 times. देयर वाज दिस वन टाइम व्हेन बिफोर लैंडिंग गोवा एंड व्हेन वी फ्लू फ्रॉम गोवा टू द डेस्टिनेशन, उन्होंने फिर से एक और मतलब रिफ्रेशमेंट बॉक्स दिया। सो आई वाज रियली हैप्पी। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना सब कुछ करेंगे मतलब एयर इंडिया वाले। व्हेन वी फ्लू फ्रॉम गोवा विदिन 45 minutes आई रीच टू माई डेस्टिनेशन। एज आई वाज वॉकिंग आउट विद माई लगेज, दे स्टॉप्ड मी, दे आस्क्ड मी टू फिल अ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर द सेकंड टाइम नाउ, एंड एज सून एज आई वाज रेडी टू लीव द एयरपोर्ट दे टुक माई टेम्परेचर टेस्ट। लाइक दिस इज द थर्ड टेम्परेचर टेस्ट दैट आई गेव within like the span of 4 hours, and then I just came out normally and nothing happened. They asked me to home quarantine myself. I did that. I'm making this video. I'm outside right now, but I'm making this video after 7 days when I landed in the destination. Also, if you are still guessing कि मैं कहाँ पर हूँ, keep guessing. Keep letting me know in the comments कि अगर आपको लगता है कि आप सही जगह बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। So अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को डिफरेंस लगा फ्लाई करने में। ये सारी चीज़ें मेरे को फॉलो करनी थी एंड ये सब। दिस वॉज द मिडल ऑफ माई रन। मैं अपना भाग रहा था, फिर मैं भाग के रुक गया। So I started talking to you people. I thought कि ये भी वीडियो बना के खत्म करते हैं। These were the guidelines that you have to follow, that you have to remember. If you found this video helpful, share with your friends, family and everyone. Also, there are gonna be more fun vlogs coming up in this new city, in this new environment. I hope that you guys will like it in the future. And मैं एक और बार बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को दबाओ यार, क्योंकि बहुत हेल्प करता है। And for now, I'll take a leave. I'll see you next time. Peace.